Now, now we have done the concepts on arrays. We have done the revision in the last class, and हम लोग sorting सीख चुके हैं, selection sort किए हैं. This is bubble sort. We now know how to search for a value in the array. We know how to find the maximum value in an array. तो हम लोग more or less जो important topics है वो कर लिया. So what we have done is the important topics are the main algorithms. Now is the time to do something a bit more. ठीक है? So we will pay very close attention to what we are doing now. So the first thing that we are going to do now is understand one thing, just one important. So we have an array. So whenever we have an array, ठीक है, so हम लोग क्या करते हैं, array में हम लोग के पास indexes होता है. So when we speak about indexes and when we are talking about values in an array, remember we are talking about a list. ठीक है, हम लोग एक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड दिस लिस्ट कैन बी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट और कैरेक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो काफी कुछ हो सकता है, बट अरेंजिंग वैल्यूज, searching for values are very important concepts of any list. तो हम लोग जब भी आपको लिस्ट के बारे में बात करेंगे, we are talking about a certain type of value. So remember, the list is made of only one data type. याद रखिएगा, हम लोग के array में an array stores values of only one data type. ठीक है? So if I say int a is equal to new int 10, तो ये क्या करेगा? It will create an array of 10 integers. It will create an array of 10 integers. So जब हम लोग बोलते हैं sort the array, जब हम लोग बोलते हैं sort the array, what do? We arrange the array, arrange the values of the array in an order that follows a certain rule. So हम लोग जब ascending order बोलते हैं, when we talk about ascending order, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about a value that is always less than the value that comes after that. And अगर हम लोग descending order का बारे में बात करेंगे, so we are talking about a value that is always greater than the value that comes after that. ठीक है? So ये तो काफी clear rule है. Let us see our array. So let us have a certain list of arranged values. Let us have a list of arranged values. ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है जिसका वैल्यूज अरेंज किया हुआ है in ascending order. The values are in ascending order. Now we will
यूज अ वैल्यू एज अ पाइवेट। ठीक है, हम लोग पाइवेट बोल सकते हैं, या हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, वी कैन यूज लेट्स से अ प्लग पॉइंट। ठीक है, और लेट्स से एज अ मिड वैल्यू। ठीक है, मिड ही बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में भी हम लोग मिड लिखेंगे। सो लेट्स से वी हैव अ मिड वैल्यू, तो इसका मिड वैल्यू शुड बी दिस वन। ठीक है, सो 79 यहां मेरा मिड वैल्यू। What is important here is to understand all values before this value will be less than 79। चलिए नंबर ही लिख देते हैं, and all values after 79 will be greater than 79। दैट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, राइट? कि मेरे बाद वाले वैल्यूज में ज्यादा वैल्यू होगा और मेरे पहले के वैल्यू में कम वैल्यू होगा। 79 के पहले जो वैल्यू छोटा होगा, 79 के बाद वाला वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, सो इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 79। ठीक है, सो लेट्स से x जो है वो 79 से बड़ा है, कोई वैल्यू है x और वो 79 से बड़ा है ना। एक वैल्यू अगर 79 से बड़ा है तो x is greater than this value, therefore x will also be greater than all the values बिफोर 79। तो याद रखिएगा यहाँ मेरा 79 पाइवेट है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 79 जो है, 79 इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज दैट कम बिफोर इट, एंड मेरे पास एक सर्टेन वैल्यू x है। तो x में क्या वैल्यू है हमको नहीं मालूम, हम लोग उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो 79 क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 79 से एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि एक वैल्यू ऐसा है जो 79 से बड़ा है, तो वो वैल्यू बाकी इन सारे वैल्यू से भी बड़ा होगा, बाकी इन सारे वैल्यू से भी बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, सो अगर x मेरा लेट्स से 80 है, तो 80 is greater than 79, 80 will also be greater than all the values before 79। ठीक है, and if y is less than 79, then y will be less than all values after 79। तो अगर मेरे पास एक ऐसा वैल्यू y है जो 79 से इससे छोटा है, याद रखिएगा जो वैल्यू हम मिड में ले रहे हैं, जो वैल्यू हम बीच में ले रहे हैं, उसके बाद जितना वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा। तो अगर कोई भी वैल्यू इस वैल्यू से छोटा है तो वो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें लेकर आगे बढ़ना है। So if the value of y x, let's say y is 72, तो 72 तो मेरा 79 से छोटा है, 72 81 से भी छोटा होगा, 72 जो है 92 से भी छोटा होगा, 72 100 से भी छोटा होगा, 72 101 से भी होगा, 72 102 से भी होगा। सो कोई भी वैल्यू अगर वो 79 से छोटा है तो 79 के बाद जितना भी वैल्यू उससे भी छोटा होगा। ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही हमको अभी समझना है। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे, अभी आप लोगों को डाउट बताइए। सो वी विल राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे ऑफ साइज n।
and another value to search in the array, and we will search the value using the concept called binary search. Now ये एक algorithm है, right? So this is an algorithm which is known as divide and conquer. ठीक है, ये एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है, हर बार एरे को या एक लिस्ट को हाफ में डिवाइड कर देता है। तो याद रखिएगा ये एल्गोरिदम जो है, ठीक है, ये एल्गोरिदम आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर से इनेबल कर रहे हैं, उसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू सी आर ऑल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। हम लोग जितना भी यहाँ प्रोग्राम लिखा है, they all deal with maths, all of them deal with maths, everything that you see we deal with maths. So if a at j is less than a at j plus 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा अगर पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटा है तो उसको स्वैप कर दो। ये हम नॉर्मल कॉपी में भी किया, राइट? हम यहाँ लिख के दिखा सक रहे थे, वी डिड इट बाय राइटिंग इट। यानी अगर हम लिख के कर सकते हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स है और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली इम्प्लीमेंटिंग दैट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन द कंप्यूटर। सो बाइनरी सर्च क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग एरे इनपुट करेंगे, इनपुट द एरे एंड सर्च वैल्यू, ठीक है। सो नाउ आई हैव अ बिग डिस्क्लेमर, दिस एल्गोरिथम only works in sorted arrays. This algorithm only works in sorted arrays. यानी मेरा array जो होगा वो sort किया हुआ होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। So the algorithm can only work when the array is sorted. यानी अगर आपका array sorted नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। So let's make this highlighted in yellow. That is very important. याद रखिएगा अगर आपका array sorted नहीं है तो हम लोग का काम नहीं करेगा। ना इनपुट करने आपको आता है, हम लोग इनपुट नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे। हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे मिनिमम वेरिएबल जो है वो 0 होगा, एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल है वो n-1 होगा। ये लास्ट इंडेक्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे वाइल, यानी लूप करो तब तक, ठीक है। तो राइट वाइल, so we'll loop as long as the value in minimum is less than the value in maximum, ठीक है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग मिड वैल्यू लेते हैं, मिड इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। मिड वैल्यू इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। सो नाउ यू रिमेंबर कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मेरा वैल्यू क्या है, यू हैव नो आइडिया व्हाट वैल्यूज वी हैव हियर। I can show it to you, but I will not show it to you because the computer does not know कि क्या वैल्यू होता है। कंप्यूटर जब तक एरे को एक्सेस नहीं करेगा वो उसका वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। इनपुट करने टाइम हम लोग इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इफ ए, अच्छा, एस इज लेस देन ए एट मिड। प्लीज बेयर विथ मी, हम क्या लिख रहे हैं, एल्गोरिथम समझना है हम लोग को। जस्ट बेयर विथ मी, हम क्या लिख रहे हैं, एस इज लेस देन ए एट मिड, max is equal to mid minus 1, else if s is greater than a at mid, minimum is equal to mid plus 1, else, so we are just going here, else pos is equal to mid and we will break from the loop, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं पीओएस का वैल्यू -1 लेते हैं, हम 0 भी ले सकते हैं बट ठीक है, चल ठीक है 0 लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा
जीरो बोल के कोई इंडेक्स नहीं होता है, जीरो बोल के कोई पोजीशन नहीं होता, जीरो बोल के इंडेक्स होता है। तो अगर आपको पोजीशन नहीं चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेक इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ -1 लेंगे और ये हो जाएगा इंडेक्स। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, हार्डली मैटर्स पोजीशन हो या इंडेक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वर्किंग। सो मिनिमम का वैल्यू है, सो लेट्स चेंज द कलर। मिनिमम का वैल्यू है 0, ठीक है, एंड मैक्स का वैल्यू है 9, ठीक है। हम लोग सर्च कर रहे हैं, लेट्स से वी आर सर्चिंग, एस बोल के एक वेरिएबल है जिसको हम लोग सर्च है, हम लोग 67 सर्च कर रहे हैं। सो आई डू नॉट नो वेदर 67 इज इन दिस अरे। तो अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग को भी नहीं पता है कि 67 इसमें है या नहीं। सो इवन यू वांट टू नो वेदर 67 इसमें है या नहीं, ठीक है। Okay, we'll not do 67. We'll do 81. ज्यादा मजा है, ठीक है, 81। सो क्वेश्चन, मिनिमम का वैल्यू हो गया, मैक्सिमम का वैल्यू हो गया, हम लोग लूप एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग लूप जब स्टार्ट करते हैं, मेरे को प्रोग्राम बोलता है कि चेक करो, आई एम द कंप्यूटर, ओके। So as I am the computer, the program is telling me check whether minimum is less than or equal to maximum, less than or equal to maximum. I forgot the equal to. Just a second. We'll have equal to. So whether minimum is less than or equal to maximum. So क्या मिनिमम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम है? हाँ, देखिए मिनिमम का वैल्यू 0 है, मैक्सिमम का वैल्यू 9 है, मिनिमम का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। चलिए सही, तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो मेरा मिड क्या होगा? मिड हो जाएगा 0 प्लस 9/2, 0 प्लस 9/2, ठीक है। सो हम आप लोग से पूछते हैं 0 प्लस 9/2 क्या होगा? लेट मी आस्क अ फ्यू पीपल, लेट मी आस्क रेडमी, हम 0 प्लस 9/2 क्या होगा? क्या होगा 0 प्लस 9/2? 4.5। अमीरा क्या हो सकता है? 0 प्लस 9/2 क्या होना चाहिए? सर फोर्थ पोजीशन। देखिए, now since we are getting two answers here, एक 4.5 बोला है, एक 4 बोला है, we also need to realize one very inexplicable, very important point. अगर एक इंटीजर को एक और इंटीजर से ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं एक और इंटीजर से, तो ये एक्सप्रेशन हमको आंसर इंटीजर में देता है। So we have 0, we have 9. 0 is an integer variable value, 9 is an integer variable value, यानी दोनों डेटा टाइप इंटीजर है, एंड 2 is an integer number। हम 2.0 नहीं लिखा है, हम 2 लिखा है। तो अगर 2.0 लिखेंगे तो जावा उसको क्या समझेगा? 2.0 को जावा समझता है डबल, 2.0 को जावा समझता है डबल, बट हम लोग क्या लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है। तो 9/2 जावा आंसर करेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फॉर्म में। तो 9/2 का आंसर होगा 4, 9/2 का आंसर होगा 4। सो अब हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, और दिस इज माय मिड वैल्यू, एंड माय क्वेश्चन इज क्या एस का वैल्यू मिड से छोटा है? क्या एस का वैल्यू मिड वैल्यू से, ठीक है, ए एट मिड से, मिड उस इंडेक्स के वैल्यू से छोटा है? नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या एस का वैल्यू मिड के वैल्यू से बड़ा है? कंडीशन ट्रू होता है। तो अगर 81 इससे बड़ा है, तो 81 इस वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? बिकॉज ऑल दिस एरे इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये एरे है असेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये एरे जो है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, अगर मेरा वैल्यू इससे बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है, तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए।
ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये मेरा मिड वैल्यू, ठीक है। ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी दिस। छोटा है, छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। ऑल द वैल्यूज आर लेस देन 81, यानी मेरा 81 छोटे वैल्यू में तो नहीं हो सकता है। अगर 81 इससे बड़ा था तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा वैल्यू यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा वैल्यू इनसे बड़ा है। तो मेरा वैल्यू कहाँ हो सकता है? इस रेंज में हो सकता है। मेरा वैल्यू कहाँ हो सकता है? ये दूसरे रेंज में होगा, ठीक है। सो वेयर शुड माई वैल्यू बी? समवेयर हियर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मेरा वैल्यू कहाँ है वो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ सो अगर मेरा वैल्यू यहां नहीं है तो मेरा वैल्यू कहाँ है? यहां है। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, मिनिमम इज इक्वल टू मिड प्लस वन, मिनिमम इक्वल टू मिड प्लस वन, यानी मिनिमम का वैल्यू 0 से चेंज होकर 5 हो जाएगा। यानी अभी हम लोग एरे को कहां से कहां कंसीडर कर रहे हैं? हम लोग एरे को यहां से यहां कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग द एरे, द वैल्यू लाइज फ्रॉम 5 बिटवीन 5 to 9। हम लोग ये क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा वैल्यू 5 से 9 के बीच में है, ठीक है। ये तो हम लोग श्योरली बोल सकते हैं यहाँ नहीं है। और हम लोग कैसे बोला? जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू एंड इट्स रिलेशन विद दिस वैल्यू, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या हो गया, मेरा मिनिमम वैल्यू बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो एल्स में तो नहीं जाएगा, एल्स में तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये एल्स में नहीं जाएगा, मेरा इंडेक्स जो है वो कुछ नहीं होगा, इंडेक्स अभी भी -1 है। लूप वापस आएगा, लूप वापस आएगा यहाँ और बोलेगा कंडीशन चेक करिए। हम लोग कंडीशन क्या देख रहे हैं? मिनिमम का वैल्यू मैक्सिमम से छोटा है, इट्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। मिनिमम का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। अब लूप अंदर आता है, बोलता है मिड में मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 करो, 5 प्लस 9 बाई 2 कीजिए, ठीक है। मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को ये वैल्यू मिला मिनिमम। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा सर्च करने वाला वैल्यू इस वैल्यू से छोटा है? क्या मेरा सर्च करने वाला वैल्यू अभी जो मिड इंडेक्स में है उस वैल्यू से छोटा है? देखते हैं यहाँ। ऑब्वियसली 81 इज लेस देन 100। याद रखिएगा ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो अगर 100 से छोटा है मेरा सर्च वैल्यू, तो 100 के बाद वाला वैल्यू से भी होगा, 100 के उसके बाद वाले वैल्यू से भी होगा। यानी मेरा वैल्यू यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो छोटा है, इसके बाद वाले वैल्यू से भी छोटा है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई मेरा मैक्सिमम रेंज अब 9 नहीं होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम रेंज अब कहाँ हो जाना चाहिए? इससे पीछे लेकर आइए। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, मैक्स इक्वल टू मिड -1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अब कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि मेरा वैल्यू 5 से लेकर 6 के बीच में है। देखिए मेरा वैल्यू तो है नहीं यहाँ। तो हम लोग पहले प्रूव किया था कि मेरा वैल्यू यहाँ नहीं है, और हम लोग को नजर आया वैल्यू यहाँ नहीं है। अभी हम लोग प्रूव किया मेरा वैल्यू यहाँ नहीं है, हम लोग देखा वैल्यू यहाँ नहीं है।
अब लूप वापस आता है, देखिए ये कंडीशन ट्रू हुआ तो एल्स में तो जाएगा नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एल्स में नहीं जाएगा, तो अगर एल्स में नहीं जा रहा है तो मेरा तो ये यहाँ आएगा, मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 का मतलब क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 का मतलब है कि वो 5 होगा, 5 प्लस 6/2 हमको 11 देता है, 11/2 हमको 5.5 देना चाहिए, बट ये डिवीजन इंटीजर डिवीजन, और इंटीजर डिवीजन क्या बोलता है कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो अगर 5.5 में डेसिमल पॉइंट और उसके बाद का वैल्यू हम नहीं लेंगे तो बचा क्या, हमको बचा 5, हमको क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज माय मिड वैल्यू नाउ, देखिए अभी यहाँ 5 हो गया है, मिड वैल्यू मेरा 5 है, 5 है। अब सवाल उठता है क्या एस मेरा सर्च वैल्यू मेरे मिड वैल्यू से छोटा है, ऑफ कोर्स नॉट। क्या मेरा सर्च वैल्यू मेरे मिड वैल्यू से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो अगर मेरा सर्च वैल्यू मेरे मिड वैल्यू से बड़ा नहीं है, मेरा सर्च वैल्यू मेरे मिड वैल्यू से छोटा नहीं है, तो मेरा सर्च वैल्यू कहाँ है, मिड में है। इंडेक्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं, मिड में। अभी तक इंडेक्स मेरा क्या था, 0 था, अब क्या स्टोर हो जाएगा इसमें, 5 स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू फाउंड एट पोजिशन, याद रखिए पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं तो पोजीशन इज ऑलवेज वन मोर देन द इंडेक्स, पोजीशन इज ऑलवेज वन मोर देन द इंडेक्स। बट अगर हमको वैल्यू नहीं मिलता, अगर हमको वैल्यू नहीं मिलता तो लूप के बाद ये कंडीशन मेरा पॉजिटिव है, याद रखिएगा ये मेरा एंड ऑफ लूप है, ठीक है। तो लूप के बाद हमको क्या मिलता, हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू नॉट फाउंड, क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू नॉट फाउंड। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। So let's type this program, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। Let us take this। Now हम लोग का प्रोग्राम assume करेगा, remember my program will assume that the array is in ascending order। Now हम लोग अभी assumption रखते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या होगा। Public class binary search public static void main scanner sc is equal to new scanner system dot in, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एक एरे ले लेंगे, देखिए हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे भी, जस्ट एरे को डिक्लेयर किया, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ लिखते हैं एरे इज ओनली डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ जब तक आप न्यू नहीं लिखेंगे एरे में मेमोरी नहीं मिलेगा। एल लेंगे, आप इंडेक्स वाला वेरिएबल लेंगे, हम लोग मिनिमम लेंगे, हम लोग मैक्सिमम लेंगे, हम लोग मिड लेंगे, ठीक है, सब वैल्यू ले लिया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter the size of the array, ठीक है, n हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट n, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरे इनपुट हो गया, तो हम लोग एरे में मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। दैट्स माय कमेंट। ए में हम लोग न्यू इंट लिखेंगे, याद रखिएगा, प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हम लोग सिर्फ ए लिखा है, बॉक्स ब्रैकेट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है, ए ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर्ड है, तो हमको उसको फिर से बॉक्स ब्रैकेट देके डिक्लेरेशन में नहीं देना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, एलोकेटिंग मेमोरी टू दी array, allocating memory to the array. So we allocated memory. Now we'll ask the user
enter the values for the array. हम लोग लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0. ऑब्वियसली हम i लिया नहीं है, i is less than n, I plus plus. ठीक है, and we will take the array with I index as input. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ये तो इनपुट हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिनिमम में लेंगे 0, मैक्सिमम में लेंगे n-1 एंड हम लोग अपना लूप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, while minimum is less than equal to maximum. ठीक है, mid is equal to minimum plus maximum by 2. Integer division है. So if s is less than the value at which position of array a, तो हम लोग क्या करेंगे, max is equal to mid minus 1. Else if s is greater than a at mid, minimum is equal to mid plus 1. Else index क्या हो जाएगा, mid, and we will break from the loop. ठीक है, so if index is not equal to -1, तो हम लोग स्टार्ट किससे किया था, इंडेक्स का वैल्यू किससे स्टार्ट किया था, हम लोग लिखा नहीं है, सो लेट्स राइट इट. इंडेक्स का वैल्यू स्टार्ट किया -1 से, और अगर लूप के बाद हमको इंडेक्स का वैल्यू -1 नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि इंडेक्स में कोई और वैल्यू स्टोर किया गया था. तो हम लोग क्या बोलेंगे यूजर को, हम लोग उसको बताएंगे कि हमको वैल्यू मिल गया, और उसको उस वैल्यू का पोजीशन भी दे सकते हैं. तो वैल्यू फाउंड एट पोजीशन. रिमेंबर हम लोग पोजीशन दे रहे हैं, इंडेक्स नहीं दे रहे हैं. इंडेक्स हमेशा पोजीशन से एक कम होता है, पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है, बट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इंडेक्स में +1 करेंगे तो पोजीशन मिलेगा. ठीक है, एल्स हम लोग बोलेंगे ओके. सो लेट्स डू दिस. आई थिंक वी आर डन. ओके, सो यहाँ ये होगा, कंपाइल किया है, देयर आर एरर्स. ओके, सो वी हैवंट टेकन द वैल्यू, द सर्च वैल्यू. सो चलिए इसको इनपुट करते हैं. वी मिस दैट. ठीक है, सर्च वैल्यू भी इनपुट हो गया, ये कंपाइल भी हो गया. लेट्स ट्राई एंड रन दिस. सो लेट्स से हम लोग 10 साइज का एरे लेते हैं. हम लोग बहुत सिंपल वैल्यू देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and we'll ask the user to tell us whether the value 60 is present in the array or not. वो बोलेगा हाँ भाई, it is present at position 6. ठीक है, so if I run the array again, run the program again, 10 size का array लेते हैं, वो देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. हम लोग बोलते हैं, हम लोग पूछते हैं कि भाई बताइए 55 एरे में है या नहीं, तो बोलेगा वैल्यू नॉट फाउंड. वैल्यू क्या बोलेगा, नॉट फाउंड. सो आवर सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज टू चेक इफ द वैल्यू इज नॉट देयर और नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, ये हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होगा. तो लेट्स डू दिस. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट.
सो जस्ट देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. हाउ डू वी नो वेदर अ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे. तो मिनिमम मेरा होगा 0, मैक्सिमम होगा मेरा इन दिस केस 9. ठीक है, मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा मेरा 9. तो हमको प्रोग्राम बोलता है कि वाइल मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम. हाँ भाई, मिनिमम का वैल्यू मैक्सिमम से कम है, तो मिड वैल्यू क्या हो जाता है, मिड वैल्यू हो जाता है 0 + 9/2 यानी 4. हमको सर्च करना है, हमको सर्च करना है 84. हमको सर्च करना है 84. तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिड वैल्यू हमको 4 मिला है. हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा जो वैल्यू है मिड वैल्यू में, क्या मेरा सर्च वैल्यू से छोटा है, नहीं. क्या मेरा सर्च वैल्यू से बड़ा है, हाँ. यानी अगर इससे बड़ा है तो मेरा वैल्यू इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा. मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड +1 यानी 5. यानी हमको क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि वैल्यू आपका यहाँ कहीं है. ठीक है. अब अगली बार ये लूप में जाएगा, लूप का कंडीशन ट्रू होगा, अगेन मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 मिलेगा. हमको मिलेगा 5 + 9/2 यानी 7. यानी ये मेरा मिड वैल्यू है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन है कि क्या मेरा एस का वैल्यू इससे छोटा है. हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या मेरा एस का वैल्यू मिड वाले इंडेक्स से छोटा है. हम लोग देख रहे हैं हाँ छोटा है. यानी अगर इससे छोटा है तो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा. यानी मेरा मैक्स वैल्यू यहाँ कहीं होगा, यानी मैक्स का वैल्यू मिड -1 हो जाएगा. यानी ये हो जाएगा 6. ठीक है. अब लूप वापस आता है, ये देखिए ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा. लूप वापस आता है और हमको यहाँ मिलता है मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम. हाँ भाई, मिनिमम का वैल्यू छोटा है मैक्सिमम से. मिड वैल्यू आएगा 5, 5 + 6/2 आएगा 5. यानी ये मेरा मिड वैल्यू है. क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एस का वैल्यू इससे छोटा है, 84 81 से छोटा है, नहीं. 84 इससे बड़ा है, हाँ. इससे बड़ा है तो मतलब वैल्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ तो नहीं है. तो क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा. अब हमको मिड क्या मिलेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 हमको 6 मिलेगा. ठीक है, हमको क्या मिला, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 6 मिला. अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा वैल्यू इससे, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या मेरा वैल्यू इससे छोटा है, क्या एस का वैल्यू मिड वैल्यू से छोटा है. हाँ छोटा है. यानी मेरा लिमिट को, मैक्स को मिड -1 कर दीजिए. ठीक है, 6 -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो व्हेन आई कम बैक एंड आई चेक, क्या मिनिमम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम है. और याद रखिएगा अभी तक मेरा इंडेक्स वाला वेरिएबल का वैल्यू -1 है, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है. चेंज होने के लिए हमको एस का वैल्यू और मिड का वैल्यू सेम होना चाहिए. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडीशन में आता है क्या मिनिमम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम है. ये देखता है कि मिनिमम का वैल्यू तो मैक्सिमम से बड़ा हो गया है. तो अगर वो बड़ा हो गया है यानी मेरा लूप का कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है एंड मेरा लूप बंद हो जाएगा. जब लूप बंद होता है वो चेक करता है क्या इंडेक्स का वैल्यू -1 नहीं है. वो देखता है कि इंडेक्स का वैल्यू तो -1 ही है, तो कंडीशन मेरा फॉल्स होगा. और अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वो क्या बोलेगा, वैल्यू नॉट फाउंड, जो हम लोग थोड़ा देर पहले अभी देख रहे थे इस प्रोग्राम में. यहाँ हम लोग को क्या बोला था, वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि उसको मिनिमम का वैल्यू चेंज होते होते, मैक्सिमम का वैल्यू चेंज होते होते ऐसा हुआ कि मिनिमम का वैल्यू मैक्सिमम से बड़ा हो गया, विच कैन नॉट बी पॉसिबल. इसीलिए हमको वो बोलता है कि वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता.